اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج انشاءاللہ قوت مدافعت ہوسٹ ڈیفنس اور اس کے ذیل میں امیونٹی اور اس کے اقسام، امیونائزنگ ایجنٹس، NIS نیشنل امیونائزیشن شیڈول، UIP یونیورسل امیونائزیشن پروگرام، AEFI ایڈورس ایفیکٹ فالنگ امیونائزیشن اینڈ کولڈ چین پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ تصویر وضاحت کر رہی ہے کہ ہمارا دفاعی نظام 3 حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفنس، اس کو فزیکل اینڈ کیمیکل بیریئرز کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا انیٹ امیونٹی، جو خلقی یا پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ اور تیسرا حصہ اڈیپٹیو یا ایکوائرڈ یا اکتسابی امیونٹی، جن کی مکمل وضاحت آگے آنے والی ہم سلائیڈوں میں کریں گے۔ جسم کے دفاعی نظام کی کچھ تصاویر پیش خدمت ہے۔ آئیے کچھ بنیادی اصطلاحات کے معنی کو سمجھتے ہیں جو پورے چیپٹر کو کور کرتے وقت بار بار آئیں گی، اس لیے شروع میں ہی ان کو گوشے گزار کر دینا، تبصرہ کر دینا، اس کی تشریح کر دینا میں لازمی سمجھ رہا ہوں۔ پہلی اصطلاح ہے قوت مدافعت، جسم کا دفاعی نظام، امیونٹی یا مناعت، بیماریوں کے خلاف مزاحمت یا جنگ یا لڑائی۔ انیٹ امیونٹی، فطری مناعت، پیدائشی دفاعی نظم۔ ایکوائرڈ امیونٹی، حاصل شدہ مناعت، بعد میں حاصل ہونے والی مناعت، یہ پیدائش کے بعد ضرورت کے مطابق کام کرتی ہے۔ ایکٹیو امیونٹی، فعال مناعت، جسم خود اینٹی باڈیز تیار کرتے ہیں۔ پیسیو امیونٹی، غیر فعال مناعت، تیار شدہ اینٹی باڈیز، ان کو تیار کر کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، اپنے آپ یہ نہیں پیدا ہوتی۔ امیونائزنگ ایجنٹس، مناعتی عوامل، مناعت پیدا کرنے والے عوامل۔ ویکسین، بیماری سے بچاؤ کا ٹیکہ۔ OPV، اورل پولیو ویکسین، پولیو سے بچاؤ کے قطرات۔ نیشنل امیونائزیشن شیڈول، قومی ٹیکہ کاری شیڈول۔ UIP، یونیورسل امیونائزیشن پروگرام، قومی حفاظتی ٹیکہ پروگرام۔ AEFI، آفٹر ایفیکٹ فالوئنگ امیونائزیشن، ٹیکہ کے بعد پیدا ہونے والے مضر اثرات۔ کامن AEFI، ٹیکہ کے بعد جو کامن خطرات آتے ہیں اس میں شامل ہے بخار، درد، سوجن۔ سیویئر AEFI، شدید الرجی یا جھٹکے تک آ سکتے ہیں ویکسینز کے بعد۔ کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ہم سیویئر AEFI کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ کولڈ چین، ویکسین محفوظ رکھنے کا نظام۔ ILR، ویکسین رکھنے والا ریفریجریٹر۔ ویکسین کیریئر، ویکسین لے جانے کا ڈبہ۔ کولڈ باکس، ویکسین ٹرانسپورٹ باکس۔ اینٹی باڈی، حفاظتی مادہ۔ پیتھوجن، بیماری پیدا کرنے والا جراثیم۔ امیون ایکٹیویشن، مدافعتی نظام کی فعالیت۔ ہرڈ امیونٹی، اجتماعی تحفظ،
कोविड-19 के दौरान ये लफ्ज़ ख़ास तौर से चलन में आया था, जिसको कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी, यानी इज्तिमाई तौर से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर ली गई है तो ख़तरात कम हो जाते हैं। बूस्टर डोज, इजाफ़ी हिफाजती खुराक, इम्यूनोग्लोबिन, तैयार शुदा हिफाजती एंटीबॉडीज़, वैक्सीनेशन, हिफाजती टीकाकारी, डिसीज़ प्रिवेंशन, बीमारी से बचाव, प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, पोलियो, फालिज की बीमारी, मीज़ल्स, खतरा, हेपेटाइटिस बी, जिगर का वायरल मर्ज, ट्यूबरकुलोसिस, तपदिक। आइए क़ुव्वते मुदाफ़अत की तारीफ़ को समझते हैं। क़ुव्वते मुदाफ़अत से मुराद जिस्म की वह कुदरती सलाहियत है जो जरासीम, वायरस, फंगस और दिगर मुज़िर अवामिल के ख़िलाफ़ हिफाजत फराहम कराती है। नीचे इसका फ़्लो चार्ट है, किस तरीक़े से ये निज़ाम फ़आल होता है। जब जरासीम इंसान या जानवर के जिस्म में दाखिल होते हैं, व्हेन पैथोजेंस इंटर इनटू द होस्ट बॉडी, देन व्हाट हैपन्स, बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम फ़आल में आ जाता है, हरकत में आ जाता है। जिस तरीके से दुश्मन घर के करीब दिखाई पड़ता है तो फ़ौरन घर के अफराद फ़आल हो जाते हैं, उसी तरह से दिफाई निज़ाम फ़आल हो जाता है जब भी उनको इसका एहसास होता है कि कोई जरसूमा दाखिल हो गया है। अब इस फ़आलियत के नतीजे में इम्यून सिस्टम, मुनाती निज़ाम फ़आल हो जाता है, इम्यून एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके नतीजे में तहफ़्फ़ुज़ हासिल होती है और इंसान सेहत बख्श हो जाता है। मनाअत या इम्यूनिटी, मनाअत जिस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहती ताकत है। वो ताकत है जिससे जरसूमा या पैथोजन से संघर्ष किया जाता है, लड़ाई की जाती है, जिस्म की हिफाजत की जाती है। आइए मनाअत या इम्यूनिटी के अक़साम या टाइप्स पर गौर करते हैं। ये खुसूसन दो तरीके की होती है। नंबर 1 इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको फितरी मनाअत या पैदाइशी मनाअत कहते हैं। ये खुदा दाद होती है, पैदाइश के वक्त से ही मौजूद होती है। दूसरे को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हासिल शुदा मनाअत। ये पैदाइश के बाद में ज़रूरत के मुताबिक एक्वायर्ड की जाती है, हासिल की जाती है। इसे इसीलिए हासिल शुदा मनाअत या एक्वायर्ड कहते हैं। दोनों में दो सब रुकन हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी जिस्म खुद बनाता है और पैसिव में जिस्म खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, बल्कि बाहर से दी जाती है। अब जो है इन्नेट इम्यूनिटी के जो मिसालें हैं, आपका स्किन, जिल्द, आंसू, मैदा का तेज़ाब, सफ़ेद खून के खलियात, वाइट ब्लड सेल्स, WBC of blood. These are the different examples of innate immunity. And acquired immunity में active immunity and passive immunity. Active immunity में जब जिस्म खुद एंटीबॉडीज बनाता है, जैसे बीमारी के बाद और वैक्सीन के बाद जिस्म खुद अपने आप एंटीबॉडीज तैयार करता है जब कोई बीमारी आती है या वैक्सीन दिया जाता है। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, ये जिस्म खुद ब खुद एंटीबॉडीज नहीं तैयार करता है, बल्कि बाहर से यह एंटीबॉडीज दी जाती हैं, तैयार शुदा एंटीबॉडीज जिस्म को दी जाती हैं। मसलन माँ के दूध से, प्लेसेंटा को माँ के प्लेसेंटा से क्रॉस करते हुए बच्चे में ये पहुँचता है और इसमें मुनाद की क़ुव्वत होती है।
तो माँ के दूध से पैसिव इम्यूनिटी है, और फिर उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन, तैयार शुदा एंटीबॉडीज बाहर से जिसमें दाखिल कराई जाती हैं। ये वही दर्जाबंदी दिखाई गई है जो पहले मैंने आपसे अर्थ किया। नंबर 1 इनेट इम्यूनिटी, नंबर 2 एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 सब रुकन ज़ैली अक़साम, एक्टिव एंड पैसिव। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, मनाअती अवामिल, वह अवामिल जो जिसमें मनाअत पैदा करते हैं। मसलन नंबर 1 वैक्सीन, जरासीम या इनके हिस्सों से तैयार शुदा मवाद। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव अटेनुरेटेड, बीसीजी, ओपीवी, किल्ड और इनएक्टिव, आईपीवी, रेबीज, टॉक्साइड, टेटनस, सब यूनिट हेपेटाइटिस बी, कॉन्जुगेट पेंटावैलेंट वैक्सीन। मनाती अवामिल में नंबर 1 पर आपने वैक्सीन्स पढ़ा। दूसरा है इम्यूनोग्लोबिन्स, तैयार शुदा एंटीबॉडीज, मसलन एंटी रेबीज सीरम, टेटनस के लिए इम्यूनोग्लोबिन। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अक्सर पेपर में यह सवाल पूछा जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो मुख्तलिफ उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ वैक्सीन्स दी जाती हैं। मसलन पैदाइश के वक्त बीसीजी, ओपीवी 0 एंड हेपेटाइटिस बी, ये पैदाइश के वक्त ही, बच्चे के पैदा होते ही नवमौलूद को ये 3 वैक्सीन्स दी जाती हैं। 6 हफ्ते के बाद ओपीवी 1 एंड पेंटावैलेंट 1 एंड रोटा वायरस, ये 3 वैक्सीन 6 हफ्ते के बाद दी जाती हैं। 10 हफ्ते के बाद ओपीवी 2 पेंटावैलेंट 2, 14 हफ्ते के बाद ओपीवी 3 पेंटावैलेंट 3 आईपीवी, 9 मंथ्स के बाद मीजल्स एंड रूबेला के वैक्सीन दी जाती है। 16 से 24 महीने के बाद डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, 5 से 6 साल की उम्र में डीपीटी बूस्टर, 10 साल टीडी एंड 16 साल टीडी। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको 2-4 बार लिख करके याद कर लीजिए, इस पर अक्सर सवाल एग्जाम में आते हैं। ये वही पिछली स्लाइड्स का फ्लो डायग्राम है। पैदाइश के वक्त 6 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद, 14 हफ्ते बाद, 9 महीने के बाद, 16 से 24 महीना, 5 वर्ष, और 10 से 16 वर्ष में कौन कौन से आपको वैक्सीन्स देनी है, इसका प्रोग्राम है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यह हुकूमत हिंद भारत सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। यह हुकूमत हिंद का कौमी प्रोग्राम है जिसका मकसद बच्चों को और हामिला ख़वातीन को मुहलिक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसके ख़ास मक़ासिद बच्चों की अमवात को कम करना, वबाई अमराज की रोकथाम, कौमी सेहत बेहतर बनाना, और इसके अंदर जिन अमराज को मुनज़्ज़म किया जाता है, जिन अमराज से तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है, वो 7 हैं। नंबर 1 ट्यूबरकुलोसिस, नंबर 2 पोलियो, नंबर 3 डिप्थीरिया, नंबर 4 परट्यूसिस, नंबर 5 टेटेनस, नंबर 6 मीज़ल्स या ख़तरा, और नंबर 7 हेपेटाइटिस या जिगर के अमराज, हेपेटाइटिस बी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्लो चार्ट
वैक्सीनेशन कवरेज। पहला मकसद अमराज से तहफ़्फ़ुज़, डिसीज प्रिवेंशन। नंबर 2 रिड्यूस मार्टेलिटी, अमवात की शरह को कम करना। और तीसरा सेहतमंद माशरे का इंतजाम करना, हेल्दी कम्युनिटी। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जिसको मुख्तसर में AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अवारिज बाद अज टीकाकारी, टीका लगाने के बाद कुछ एवारिस, कुछ अलामात, कुछ खदशात पैदा होते हैं, जिनको हम AEFI कहते हैं। वैक्सीन टीका लगने के बाद पैदा होने वाले मुज़िर असरात। टीका लगाने के बाद पैदा होने वाले उमूमी ख़तरात, कॉमन माइल्ड AEFI, मसलन हल्का बुखार, इंजेक्शन की जगह दर्द, सूजन और चिड़चिड़ापन हो सकता है। सीवियर AEFI, जो शदीद ख़तरात होते हैं, उनका जिक्र इसमें किया जाएगा। नंबर 1 शदीद एलर्जी, एनाफाइलैक्सिस। और नंबर 2 झटके या कन्वल्जन। और नंबर 3 शदीद रद्द अमल या टॉक्सिक शॉक हो सकते हैं। AEFI फ्लो डायग्राम, वैक्सीनेशन के बाद जिस्म से कुछ रद्द अमल हो सकता है, जिसे हम बॉडी रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, और कुछ उसमें हादसात हल्के या शदीद किस्म के पैदा हो सकते हैं, जिसको हम माइल्ड या सीवियर इफेक्ट्स के करते हैं। और इनका इंतज़ाम करना, और इस तरीके के अगर ख़तरात ज़्यादा शदीद हैं तो इनकी रिपोर्टिंग करना शामिल होता है। वैक्सीन्स कम दर्जे हरारत यानी लो टेम्परेचर पर ही फ़आल या एक्टिव होते हैं। अगर दर्जे हरारत ज़्यादा हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो इनको महफूज रखने के तरीक़े को हम कोल्ड चेन कहते हैं। कोल्ड चेन वैक्सीन को मुनासिब दर्जे हरारत में महफूज रखने का निज़ाम कोल्ड चेन कहलाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन, वैक्सीन पोटेंसी की बरकरार रखना, उनकी फ़आलियत को बरकरार रखना। दूसरा वैक्सीन के डैमेज, नुकसान होने से बचाना। और तीसरा मुअस्सिर इम्यूनाइजेशन हासिल करना। कोल्ड चेन कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट, फंक्शन, ये जो नज़्म है जिसमें हम वैक्सीन्स को रखते हैं, उसको कोल्ड चेन कंपोनेंट इक्विपमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें शामिल है ILR, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। चारों तरफ बर्फ रखी रहती है और बीच में वैक्सीन रखी जाती है। इस बॉक्स को ILR, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं। ये डीप फ्रीज आइस पैक्स होते हैं। कोल्ड बॉक्स है, ट्रांसपोर्ट वैक्सीन कैरियर शामिल है और फील्ड ट्रांसपोर्ट शामिल है। यानी इसके सब रुकन हैं। डीप फ्रीजर होना चाहिए, आइस पैक्स होना चाहिए, कोल्ड बॉक्स होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वैक्सीन कैरियर होना चाहिए और फील्ड सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए। कोल्ड चेन टेम्परेचर, मोस्ट वैक्सीन्स आर एक्टिव अप टू +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। माइंड इट, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ज़्यादातर वैक्सीन्स की फ़आलियत बरकरार रखती है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। और OPV के साथ तो और ज़्यादा मसला है। इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज किया जाता है, ज़ख़ीरा अंदाज़ी की जाती है। कोल्ड चेन फ्लो चार्ट, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर इसका मैन्युफैक्चर करता है, रीजनल स्टोर्स पर आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टोर पर, फिर PSC प्राथमिक हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ से वैक्सीनेशन सेशन जहाँ पर वैक्सीन लगाने का सेंटर लगाया गया है वहाँ तक पहुँचता है।